midpoint of segment joining the point 22, 20 and 0, 16 मीन्स व्हाट, हमें एक सेगमेंट बनाना है और उसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या बोला है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे एक्स और वाई। कौन सा सेगमेंट है जो जॉइनिंग कर रहा है 22, 0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज 0, 16। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये ए है, ये बी है एंड सी है। सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए एंड बी। क्लियर? सो ए का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 22, 20 राइट एंड बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 16। स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए x1 y1, एंडिंग पॉइंट है इसलिए x2 y2 राइट। हमें x और y निकालना है by using midpoint formula because C is the midpoint as given in the question, right? So A 22, 20, so this is the value for x1 and this is the value for y1. B है आपका 0, 16, this is the value of x2 and this is the value for y2. ये क्वेश्चन से हमको निकालना है, right? क्या करना है? Find the coordinate of midpoint. Midpoint क्या है आपका C. So to find C x, y, that is the coordinate of the midpoint of segment AB. So by using midpoint formula, we have already gone through the section formula and midpoint formula. We will use midpoint formula over here because in the question it has been mentioned midpoint over here. Now see, by using midpoint formula, x का for x कैसे निकालते हैं? x is equals to x1 plus x2 upon 2. What is the value of x1? x1 is nothing but 22 plus x2 is nothing but 0. 22 plus 0 is 22. 22 divided by 2 is 11. तो 11 आपका एक आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है मिड पॉइंट का। 11 is nothing but we have got the coordinate of x, right? Now we have to calculate the coordinate of y. Y का फॉर्मूला क्या है? y is equals to y1 plus y2 upon 2. What is the value of y1? See from here, y1 is nothing but 20, y2 is nothing but 16. 20 plus 16 is nothing but 36. 36 divided by 2 is nothing but 18. 18. तो c x, y is nothing but c 11, 18. मतलब हमें जो पूछा था कि find the coordinates of the midpoint, हमने 11 और 18 इनके midpoint निकालिए by using midpoint formula. Therefore आंसर में लिखेंगे the coordinates of midpoint is 11 and 18, that is c 11, 18. Find the centroid of triangle whose vertices are given below. हमें क्या निकालना है? centroid. The formula for centroid is x is equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3. ये फॉर्मूला हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से देख चुके हैं, राइट? अब सेंट्रॉइड निकालना है मतलब आपको 3 कोऑर्डिनेट जरूरी है और जब भी ट्रायंगल पूछता है, जब भी सेंट्रॉइड पूछता है तो ट्रायंगल जरूर रहेगा साथ में। ओके, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। तो ट्रायंगल बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट्स आर a, b and c. a आप p q r भी ले सकते हो, जो भी लेना आपको ले सकते हो। a is -7, 6, b is 2, -2 and c is 8, 5. This is x1 y1, x2 y2 and x2 x3 y3. Now this is called the centroid of triangle. Center of the triangle is called the centroid of triangle. Center of the triangle को हम क्या बोलते हैं? Centroid of triangle. तो G को हम x, y से represent करते हैं. So we have to just find the value for x and we have to just find the value for y by using the formula centroid. Now given a is -7, 6 means x1 y1, value of x1 is -7 and value of y1 is 6. Similarly b 2, -2, value of x2 is 2 and value of y2 is -2. Similarly c 8, 5, value of x3 is 8 and value of y3 is 5. Okay, the purpose is to find the g and x and y, right? To find centroid g x, y, this is called the centroid of triangle. इसको हम centroid बोलते हैं। तो by using centroid formula for calculating the value of x, x is equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3. So value of x1 is -7, value of x2 is 2 and value of x3 is 8 as per the formula, divided by 3 as given in the formula. So this, by calculating all this we are getting the answer 3. तो 3 upon 3 is 1. Clear? अब क्या करना है हमें? y निकालना है। So y is nothing but y1 plus y2 plus y3 upon 3 as per the formula. Value of y1 is 6, value of y2 is -2 and value of y3 is 5. So adding all these 3 terms we will get answer 9. So 9 upon 3 is 3. So हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया है। The value of x comes to be 1 and value of y is coming to be 3. Therefore
द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज जी एक्स कॉमा वाई। जी एक्स कॉमा वाई सेंट्रॉइड है, तो x का वैल्यू हमें 1 मिला था और y का वैल्यू हमने 3 मिला था। यस, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 115 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इन ट्राइंगल ए बी एंड सी G इज द सेंट्रॉइड। आपको क्या बोला है? G क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी क्वेश्चन में आपको दे दिए हुए। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको G निकालना था और A, B और C के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। ये क्वेश्चन में थोड़ा टिल्ट है, आपको G दिया हुआ है, आपको सॉरी G के वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड करना है। तो G आपको दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट इफ A इज इक्वल्स टू -14, 19 एंड B इज इक्वल टू 3, 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। हमें C के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब x3 एंड y3 के वैल्यूज फाइंड करने हैं। ओके, सो A इज नथिंग बट -14, 19, दिस इज नथिंग बट x1, दिस इज नथिंग बट y1, B इज नथिंग बट 3, 5 एज पर द क्वेश्चन, दिस इज नथिंग बट x2, दिस इज नथिंग बट y2 एंड G आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है -4, -7। ये आपका x और y आता है। G इज नथिंग बट सेंट्रॉइड, तो x और y होता है, x का वैल्यू -4 एंड y इज नथिंग बट -7। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स है x3 एंड y3, राइट। तो कोऑर्डिनेट C इज नथिंग बट x3 एंड y3 हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क टू फाइंड। अब ये भी निकालना है बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूले से निकलता है। तो सेंट्रॉइड फार्मूला क्या बोलता है? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, राइट। अब अननोन टर्म कौन सा है इसमें? सिर्फ अननोन टर्म आपका x3 है, बाकी सब नोन टर्म है, उनके वैल्यूज दिए हुए हैं आपको। तो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, x का वैल्यू आपको -4 दिया है, तो x का वैल्यू हमने we have taken the value as -4. What is the value of x1 is given to you? -14. Value of x2 is given to you 3 and x3 हमें कैलकुलेट करना है। x3 नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम द फॉर्मूला। तो -4 अब डिवाइड में रहा तो इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 3 क्या हुआ? -4 से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू -14 प्लस 3 आपका होता है -11 प्लस x3। ओके, -4 into 3 is -12 एंड -11 राइट हैंड साइड में आया तो +11 हो गया इज इक्वल्स टू x3। तो -12 प्लस 11 होता है आपका -1, तो x3 का वैल्यू आपका -1 हो गया और x3 मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। आपके C के कोऑर्डिनेट है, मतलब x3 का वैल्यू निकालो। सिमिलरली आप y निकालोगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अननोन टर्म कौन सा है आपका? y3 अननोन टर्म है, y का वैल्यू आपको दे दिया है -7 इज इक्वल टू y1 इज नथिंग बट -19, y2 इज नथिंग बट 5, y3 निकालना है। y3 क्यों निकालना है? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के निकालने हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो LHS में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू -19 प्लस 5 होता है आपका -14 प्लस y3 -7 into 3 is -21, -14 यहाँ गया तो ये हो गया आपका +40 इज इक्वल्स टू y3। 14 -21 -7 इज इक्वल्स टू y3। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जाता है कि माइनस में दी हुई आंसर प्लस में दी, तो क्या बताया था मैंने? बड़े नंबर के सामने जो साइन रहता है वो फॉरवर्ड कर दो यहाँ पे, राइट। तो y3 का वैल्यू कितना आया? -7। हमें x3 मिल गया, हमें y3 मिल गया, मतलब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C मिल गया, राइट। तो C x, y3 x3, y3 is equal to C -1, 7. Therefore the coordinate of point C is -1 and -7. Okay.